ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں محمود آباد نالہ آپریشن میں لیز مکانات توڑنے کے کیس کی سماعت ہوئی، جبکہ کے ایم سی وکیل نے جواب کے لیے ایک بار پھر سے مہلت طلب کر لی۔ عدالت کا چیف سیکرٹری میونسپل کمشنر اور کمشنر کراچی سے جواب طلب، سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی حکام سے بھی وضاحت طلب کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ میں محمود آباد نالے پر قائم تجاوزات گرانے کے خلاف آپریشن کے نام پر لیز مکانات توڑنے کے کیس پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ اور کے ایم سی حکام سے وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے چیف سیکرٹری میونسپل کمشنر اور کمشنر کراچی سے بھی جواب طلب کیا، جس پر کے ایم سی کے وکیل نے ایک مرتبہ پھر سے مہلت مانگ لی۔ درخواست گزار نے عدالت میں کہا کہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی تجاوزات گرانے کا حکم دیا ہے، لیکن متعلقہ حکام غیر قانونی تعمیرات کے بجائے لیز مکانات گرا رہے ہیں، جبکہ درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے بھی ہمارے موقف تسلیم کیا مگر عمل نہیں ہو رہا، اور متعلقہ ادارے لینڈ مافیا سے مل کر لیز مکانات توڑ رہے ہیں۔ لیز مکانات کو گرانے سے ان کو روکا جائے۔ خبر شامل کریں گے سندھ کی ہائی کورٹ سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں فٹ پاتھ پر قبضے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت کے ایم سی اور دیگر حکام پر برہم ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی، متعلقہ ادارے غیر قانونی تعمیرات اور قبضے کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کے ایم سی حکام جائیں اور فوری قبضہ ختم کرائیں، جبکہ قبضہ ختم کرنے میں جو بھی اخراجات آئیں گے وہ قابضین سے وصول کیے جائیں۔ عدالت کا حکم۔ بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے نیا گولی مار پیتل گلی میں تجاوزات کے کیس کی سماعت ہوئی، جبکہ تجاوزات ختم نہ کرنے پر عدالت ڈپٹی کمشنر سینٹرل پر برہم ہو گئی۔ تجاوزات ختم کیوں نہیں کروا رہے؟ اگر 15 دن میں تجاوزات ختم نہ کی تو توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ عدالت کی تنبیہ، 15 دن میں کارروائی کر کے جواب جمع کرانے کی عدالت نے ہدایت جاری کر دی۔ خبر دیں گے کراچی کے ضلع جنوبی سے۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں بلدیہ عظمی کراچی کی 4 منزلہ مخدوش عمارت کو منہدم کرنے کے کاموں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جبکہ رنچھوڑ لائن میں فٹ پاتھ پر بنی 8 دکانوں اور 3 کمروں کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ کے ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ عمارت مخدوش ہونے کی وجہ سے کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی تھی، جبکہ بارشوں میں حادثات سے بچنے کے لیے عمارت کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کراچی کے علاقے رنچھوڑ لائن میں بلدیہ عظمی کراچی کی مخدوش عمارت کو منہدم کرنے کے کاموں کا آغاز ہو گیا۔ 4 منزل مخدوش عمارت کی چھت پر افراد قوت کی مدد سے انہدامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے رنچھوڑ لائن میں ہی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران فٹ پاتھ پر بنی 8 دکانوں اور 3 کمروں کو مسمار کر دیا۔ کے ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ عمارت مخدوش ہونے کی وجہ سے کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔ بارشوں میں حادثات سے بچنے کے لیے عمارت کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کارروائی لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ بھی کی ہے، اور یہاں پر لوگوں کے اپلیکیشنیں اور درخواستیں آئی تھی، بلکہ ساتھ اسی کے جو ہے کراچی میٹروپول کارپوریشن کی ایک 4 منزلہ بلڈنگ ہے جو کہ انتہائی مخدوش ہو گئی ہے، اور اس میں سے جو ہے حالیہ بارشوں میں اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اس کو بھی مسماری کا کام جو ہے آج شروع کرا دیا ہے۔ آج اس کی چھت کے اوپر بھی ہم نے لیبر لگائی ہے اور اس کی چھت کے اوپر سے ہی کارروائی شروع کرا دی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے کو علاقہ پولیس، اسسٹنٹ کمشنر، سٹی وارڈن کی مکمل معاونت بھی حاصل رہی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔
वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी के हवाले से। आपको बताएं कि कंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात में वफाकी वजीर अली हैदर जैदी को हल्के से बाहर निकालने का मामला। वफाकी वजीर अली जैदी का इलेक्शन कमिश्नर ईस से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा। वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमिश्नर ईस अमीन बशीर को नोटिस भेज दिया। कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम आयद करने और मुझे इस हल्के से निकालने पर माफ़ी मांगे। मैं हल्के में मौजूद नहीं था, सिर्फ वोट देने गया था। जबकि 14 रोज में मुआफी ना मांगी तो मेरे पास कानूनी जाराजोई के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। कंटोनमेंट इलेक्शन में अली हैदर जैदी को हल्के से बाहर निकालने का मामला। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी का इलेक्शन कमिश्नर ईस से गैर मशरूत मुआफी का मुतालबा। वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमिश्नर ईस अमीन बशीर को नोटिस भेज दिया। अली जैदी कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम आयद करने और मुझे इस हल्के से निकालने पर मुआफी मांगे। मैं हल्के में मौजूद नहीं था, सिर्फ वोट देने गया था। जबकि 14 रोज में मुआफी ना मांगी तो मेरे पास कानूनी जाराजोई के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। खबर देंगे साबिक मेयर कराची और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन से एक दिन पहले नई लिस्ट आई, उसमें नए वोटर्स का इंदराज किया गया। उन्होंने कहा कि 2 बड़ी जमातों से मुकाबला था, फिर भी सिंध के शहर हैदराबाद में 10 में से 7 सीटें जीती। फंड जब तक केएमसी को नहीं मिलेंगे कराची में कोई बेहतरी नहीं ला सकता। कराची को साफ पीने का पानी, ट्रांसपोर्ट और सीवरेज के मसाइल का हल चाहिए। और अब कुछ बात करेंगे वजीर मुमलिकत जरताज गुल के हवाले से, जिनका कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। वर्ल्ड ओजोन डे की मुनासबत से कराची के मकामी होटल में तकरीब का इनकाद किया गया, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने कहा कि कंटोनमेंट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। जहां शिकस्त हुई उस पर कमेटी बना दी गई, सब अपनी अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को भेजेंगे। हम इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम नहीं लगा रहे और ना ही महाज आराई चाहते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात ये बताती हूँ कि कंटोनमेंट के इलेक्शन में तो मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई को, हमारी पार्टी को, पूरे पाकिस्तान के कंटोनमेंट के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोयटा, बनू और अगर कहीं पर पूरे फेडरेशन की जमात बन के उभरी तो वो सिर्फ पीटीआई है। कहीं पर हम हारे हैं, वो आपने लाहौर की या मुल्तान की कुछ जगहों की आपने स्पेसिफिक बात ठीक की है, उसमें हमने कोई इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। सीटें हमारी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वोट हमने लिया और इंशाल्लाह हम अगला इलेक्शन भी जीत देंगे। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल ने पीडीएम और सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि सिंध में स्कूलों के फर्नीचर के नाम पर जो करप्शन हुई, सईद गनी ने उसका एतराफ़ किया है और जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध पर आयद की है। पीडीएम तबाह हो चुकी है और आपस में लड़ रही है। 3 अरब से ज्यादा का जो स्कूल के बच्चों के डेस्क थे वो 6000 की बिड थी, 29,000 के ऊपर जो है वो ले गए। और जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर था सईद गनी साहब, वो कह रहे थे कि चोरी मैंने नहीं की, वो तो मुराद अली शाह साहब ने चोरी की क्योंकि वो एजुकेशन के मिनिस्टर थे। मतलब तो ये कि ये तो मान गए ना कि चोरी की है बच्चों के नाम पे। अब 6000 की बिड है, उसको आप जो है वो 29,000 के ऊपर लेकर गए और एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको लिख रही है कि आपके यहाँ गबन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, करप्शन हो रही है। तकरीब से खिताब में जरताज गुल ने कहा कि अर्बन फ्लडिंग की बदतरीन मिसाल कराची में देखी जा सकती है। सिंध हुकूमत की नाअहली से हर बार बारिशों में शहर डूब जाता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब कुछ तस्करा करेंगे सूबा सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के बयान के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत माहौलियात के हवाले से अर्बन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम कर रही है, जबकि चंद माह में सिंध माहौलियाती आलूदगी कम करने वाले दूसरे से तीसरे नंबर पर होगा।
نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کے تحت قدرتی ماحول کی بحالی پر کانفرنس اور 18ویں سالانہ انوائرمنٹ ایکسیلنس ایوارڈ 2021 کی تقریب بیچ لگژری ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سرسبز سندھ اور وفاقی حکومت کا گرین پاکستان پروجیکٹ جاری ہے۔ کراچی کے اربن فارسٹ اور مینگروز کی پلانٹیشنز کی جا رہی ہیں۔ صوبے بھر میں مینگروز اور ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ پورے سندھ میں سرسبز سندھ اور یہاں جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے گرین پاکستان، یا ہمارا شہروں میں اربن فارسٹری کا اور دیگر جو پروگرام چل رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ صرف کراچی کی بات کریں تو لیاری اربن فارسٹ، ہمارا کلفٹن کا اربن فارسٹ جو ہے، شاہ فیصل کا اربن فارسٹ، اور بھی بہت جہاں جہاں جگہ ملتی ہے، یا بی بی پارک جو بنایا ہے ہم نے، اور پھر جو خاص طور پر مینگروز میں جو ایک بہت ایک قسم کا انقلاب کہہ لیں یا جو بھی، جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، آپ کو اب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے رائٹ ہینڈ پہ جو مینگروز ہیں، اور یہ آگے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہم دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہیں۔ وزیر ماحولیات اسماعیل راہو کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ماحول کی بہتری کے لیے شجر کاری کی جا رہی ہے اور زراعت میں بہتری بھی لائی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ بیرونی علاقوں میں جہاں نہری پانی نہیں وہاں زراعت کے لیے واٹر پمپس مہیا کیے گئے ہیں۔ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بہت سارے چیلنج ہیں ماحول کی آلودگی کے حوالے سے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، ماحولیات کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ سندھ حکومت بھی اپنی طور پر کام کر رہی ہے، جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی اس میں بہت سے کام کر رہی ہیں۔ یہ حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایکٹ کے تحت سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی لائی گئی، ماحولیات کی بالکل ایک الگ تھلگ، ورنہ یہ پہلے دوسری منسٹری کے ساتھ ہوتی تھی، دوسری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتی، اس کو ایک سیپریٹ الگ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تاکہ یہ بہتر طریقے سے اور فعال طریقے سے کام کرے۔ ہم کوشش کریں گے۔ تقریب میں 70 سے زائد انڈسٹری اور نان گورنمنٹ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کے لیے حکومت، سول سوسائٹی، NGOs اور تمام لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مقامی سطح پر ماحولیات کے حوالے سے مہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے لیاری ایکسپریس وے پر ہیوی ٹریفک گزرنے کا منصوبہ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، جبکہ کمیٹی ایک ہفتے میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ جی شجاعت قریشی، مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، لیاری ایکسپریس وے پر ہیوی ٹریفک گزرنے کے منصوبے کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے 7 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی میں KDA کی جانب سے خالد مسرور، NHA کی جانب سے 2 افسران شامل ہوں گے، جبکہ کمیٹی میں NED کے 2 ماہرین، منصوبے کا ڈیزائن بنانے والی کنسلٹنٹ کمپنی کا نمائندہ بھی شامل ہوگا، جبکہ کمیٹی میں DIG ٹریفک کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ اور یہ کمیٹی جو ہے ایک ہفتے میں اپنی سفارشات پیش کرے گی، اور کمیٹی ایکسپریس وے کے بنیادی ڈھانچے کا جائزہ بھی لے گی، جبکہ ہیوی ٹریفک گزارنے کے لیے ایکسپریس وے پر تعمیراتی کام کی اگر ضرورت ہوگی تو اس کی بھی یہ کمیٹی نشاندہی کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شجاعت قریشی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب خبر شامل کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے حوالے سے، جنہوں نے کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ کا دورہ کیا، جبکہ جہانگیر روڈ کی خستہ حالی کا KMC کو الزام دے دیا ہے، جبکہ مرتضی وہاب نے یہ بھی کہا کہ یہ علاقہ PWD کی زیر نگرانی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ PTI کے MNA نے یہ سڑک تعمیر کروائی، جبکہ سڑک کی تعمیر کے لیے KMC اور واٹر بورڈ سے اجازت نہیں لی گئی۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ جس کی وجہ سے سڑک کے نیچے سیوریج کا نظام بیٹھ چکا ہے، ہم نے ہنگامی بنیادوں پر مرمتی اور تعمیراتی کام شروع کروا دیا ہے۔ اس وقت جہانگیر روڈ پر موجود ہوں۔ میڈیا پہ بڑا یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا، یہ سڑک جو ہے اس کا بڑا برا حال تھا، 2-2.5 فٹ بڑے گڈھے اس کے اوپر پڑ گئے تھے۔ سارا الزام اس کے اوپر KMC کے اوپر سندھ حکومت پر لگا، لیکن میں نے پہلے بھی واضح کیا اور ایک بار پھر واضح کرتا ہوں
کہ یہ ایریا پاک PWD کا ہے اور یہاں پر جو سڑک بنائی گئی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے ان کے MNA نے بنوائی تھی، اور سڑک بنانے سے پہلے انہوں نے واٹر بورڈ سے یا KMC سے کوئی NOC نہیں لی، کوئی اجازت نہیں لی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سڑک کی تعمیر میں جو سیوریج کا سسٹم تھا اور جو ڈرینیج کا سسٹم تھا اس کو چوک کر دیا گیا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا جب سسٹم سارا چوک ہو گیا، پانی باہر نکل آیا، اور جو خستہ حال روڈ انہوں نے بنائی تھی اس کا برا حال ہو گیا۔ باہر کیا ہے وہ کہ یہ ایریا وفاقی حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جہانگیر روڈ کی عوام کو اور جو لوگ اس روڈ سے گزرتے ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے اس روڈ کو کلیئر کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے۔ پہلے فیز میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور KMC کا جو عملہ ہے سیوریج لائن کو بھی کلیئر کرے اور اس کی ڈرینیج کو کلیئر کرے، اور رات کے اسپیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کام جو ہو رہا ہے، پیچھے واٹر بورڈ کی مشینری بھی موجود ہے، جو اس کے مین ہول تھے ان کو بھی کور کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر پراپر مین ہول لگائے جا رہے ہیں، اور ونچنگ کرنے کے بعد کلیئر کرنے کے بعد انشاءاللہ بارشوں کے بعد اس کی پراپر سڑک بھی ہم بنوائیں گے۔ بٹ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پاک PWD کے اہلکاروں سے میں نے خود بھی بات کی اور میں ایک بار پھر بات کروں گا۔ خبر دیں گے کراچی کے ضلع وسطی سے، جہاں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ پیش آیا ہے، جبکہ اینٹی کرپشن ویسٹ زون کا SBCA سینٹرل کے دفتر پر چھاپا۔ لیاقت آباد نارتھ کراچی گولبرگ ٹاؤن میں جاری غیر قانونی تعمیرات کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ اینٹی کرپشن ویسٹ زون کا SBCA سینٹرل کے دفتر پر چھاپا۔ لیاقت آباد نارتھ کراچی گولبرگ ٹاؤن میں جاری غیر قانونی تعمیرات کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا۔ ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ اینٹی کرپشن ویسٹ زون کا SBCA سینٹرل کے دفتر پر چھاپا۔ لیاقت آباد نارتھ کراچی اور کراچی کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں جاری غیر قانونی تعمیرات کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا۔ اینٹی کرپشن ویسٹ زون کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سینٹرل کے دفتر پر چھاپا، جبکہ لیاقت آباد ٹاؤن، نارتھ کراچی ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن میں جاری غیر قانونی تعمیرات کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا۔ ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ محکمہ اینٹی کرپشن ویسٹ زون کا SBCA سینٹرل کے دفتر پر چھاپا۔ لیاقت آباد نارتھ کراچی گولبرگ ٹاؤن میں جاری غیر قانونی تعمیرات کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے بلدیہ کورنگی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی اداروں کا بجٹ منظور نہ ہونے کے باعث OZT روک دی گئی ہے، جبکہ بلدیہ کورنگی کے 4000 سے زائد ملازمین تنخواہوں سے محروم ہو گئے، جبکہ تنخواہیں نہ ملنے سے نوبت فاقہ کشی تک جا پہنچی۔ فیسوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین کے بچوں کو اسکولوں سے نکالنے کی دھمکیاں۔ اسی صورتحال کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ جی حفیظ انصاری، مزید کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ کل دیکھیں یہ ضلع کورنگی ہے جہاں پہ تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، بلدیاتی اداروں کا بجٹ منظور نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے 4000 سے زائد ملازمین ایسے ہیں جو کہ تنخواہوں سے محروم ہیں۔ تنخواہوں کی عدم فراہمی کے باعث جو ہے گھریلو پریشانیاں، مالی مشکلات سے دوچار تو ہیں، لیکن اسکول کے ان کے بچے جو ہیں ان کے فیسوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اسکول انتظامیہ بچوں کو اسکول سے نکالنے پر مجبور ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فیملیز جو ہیں ان ملازمین کی پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار ہے۔ ملازمین کا یہی کہنا ہے کہ ہم جب ملازمین جو ہے ورکنگ اپنے کر رہے ہیں، کام اپنا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی پورے مہینے کام کرنے کے بعد تنخواہ نہ ملے تو گھر کا چولہا کس طرح جلے گا۔ اور اب صرف بات کھانے پینے اور گھر کا چولہا جلنے کی ہی نہیں ہے، بلکہ اسکولوں سے بچوں کو فیسوں کی عدم فراہمی کے باعث جو ہے نکالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا بچوں کا مستقبل بھی خطرے سے دوچار نظر آتا ہے۔ 4000 سے زائد یہ بلدیہ کورنگی کے ملازمین ہیں جو انتہائی پریشانی مشکلات سے دوچار ہیں۔ جی، تنخواہیں نہ ملنے سے نوبت فاقہ کشی تک جا پہنچی۔ بہت شکریہ حفیظ انصاری ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور اب خبر شامل کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے جاری مہم کو کامیاب بنائیں اور اپنی آئندہ نسلوں کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ایک روشن اور بہتر مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ اور توانا بنانا ہوگا۔ یونیسیف اور دیگر عالمی اداروں کے تعاون اور اشتراک سے پولیو کے
मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। KMC बिल्डिंग में यूनिसेफ के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम कौमी मकसद है जिससे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल वाबस्ता हैं। पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाने का मकसद शहरियों को इस हवाले से ज़रूरी आगाही फराहम करना है और शहर के तमाम इलाकों में पोलियो वैक्सीनेशन को यकीनी बनाना है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कामयाब पोलियो मुहिम चलाने के बाद दुनिया के बेशतर मुमालिक से इस बीमारी का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान उन चंद बदकिस्मत मुमालिक में शामिल है जहां यह बीमारी अब तक खत्म नहीं हो सकी, जिसकी बुनियादी वजह लोगों का अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन देने में हिचकिचाहट है। ताहम अब वक्त आ गया है कि इस बीमारी के खिलाफ तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं और इस हवाले से हुकूमती कोशिशों में हाथ बटाएं। यूनिसेफ और दीगर आलमी इदारों के ताउन और इश्तराक से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पोलियो के खात्मे के लिए शुरू की जाने वाले मुहिम के समरात जल्द पाकिस्तानी शहरियों तक पहुंचेंगे और इन कोशिशों के नतीजे में हमारा मुल्क अनकरीब पोलियो से पाक मुमालिक की सफ में शामिल होगा। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए किमाड़ी आसिफ खान के हवाले से। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए किमाड़ी आसिफ खान कहते हैं कि सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम को आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना है बल्कि कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी आफाक सईद, असिस्टेंट कमिश्नर बशीर अहमद अब्बासी और एक्सीएन साइट के हमरा शेर शाह के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने व्हील चेंज मशीन के जरिए अंदरूनी गलियों में सीवरेज की लाइनों की सफाई के कामों का मुआयना भी किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बरसाती नालों और नालियों की सफाई और चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर मुस्तकिल बुनियादों पर करवाया जा रहा है, जिसमें हल्की और भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत के साथ साथ दीगर यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों की जानिब से जारी कामों में मुआवनत भी की जा रही है। इस मौके पर मुआविन खुसूसी बराए किमाड़ी आसिफ खान का कहना था कि सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना है बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने एक्सीएन साइट को हिदायत देते हुए कहा कि सीवरेज सिस्टम की असर नौ बहाली के साथ साथ दीगर मसाइल को हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। और अब कुछ बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक के हवाले से। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम ज़िला शर्की में बिला इम्तियाज बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उनका कहना था कि दस्तियाब वसाइल में रहते हुए ज़िला शर्की के मकीनों को सहूलत फराहम करने के लिए कोशा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमशेद जोन सलमान मेमन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा MND इम्तियाज भुट्टो के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जामिया बनूरिया टाउन, चार मीनार, बहादराबाद और दीगर इलाकों में तरक्याती और मरम्मती कामों का जायजा लिया। मुताल्लिक अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की को जिले में ब्यूटिफिकेशन और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के जारी कामों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की ने चार मीनार चौरंगी की तज़यीन और आराइश के हवाले से मुताल्लिका अफसरान को हुक्म दिया कि मयारी तरक्याती काम को यकीनी बनाएं ताकि लोग चौराहे को खूबसूरत बनाने के लिए MND और पार्क्स के महकमों की खिदमात काबिल सताइश है। चार मीनार चौराहा इस वक्त कराची के काबिल ज़िक्र चौराहों में से एक है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी महकमा जात अपनी उम्दा कारकर्दगी को जारी रखकर बल्दिया शर्की की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों के हवाले से। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों का कहना है कि अहले इलाका के मसाइल को हल करना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि खुलूस नीयत के साथ अपने महकमा जाती फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्ला बलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर मुमताज़ अली जरदारी, XCN नूर मोहम्मद जमाली और दीगर के हमरा गडाब के इलाके में पीने के साफ पानी फराहम करने वाले वाटर
टैंकर्स का मुआयना किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर नूर हसन जोकियों का कहना था कि जो मशीनरी दस्तयाब है उसकी देखभाल लाजिम व मलजूम है, इस तरह वो तवील अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहती है। हमारी हुदूद वसी है जहाँ आमद और रफ्त में वक्त दरकार होता है, इसलिए जो मशीनरी रोजाना की बुनियाद पर अपनी सर्विसेज अहले इलाका को फराहम करती है उसकी कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाता है ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नूर हसन जोकियों ने बताया कि खराबी होने की सूरत मिनास का काम फौरी तौर पर करवाया जाता है, जबकि अपने वसाइल की हुदूद में रहते हुए अहले इलाका के मसाइल को हल करना हमारा काम है। महकमा सैनिटेशन और M&E अहम इदारे हैं जिनका सीधा ताल्लुक आवाम से है। अपने इलाके में जहां तरक्याती काम करवाते हैं वहीं दीगर उमूर अंजाम देकर अहले इलाका की खिदमत कर रहे हैं, खुलूस नियत के साथ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर के हवाले से। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री का मलीर में कम्युनिटी सेंटर की तामीर और सफाई सुथराई के कामों का मुआयना। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री कहते हैं कि मलीर में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मलीर में कम्युनिटी सेंटर की तामीर और सफाई सुथराई के कामों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर रियाज अहमद खत्री का कहना था कि फंड्स की कमी के बावजूद इलाके के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें ये सारा स्कूल का भी था और लाइब्रेरी का भी आपने विजिट किया, देखा हमारे साथ। तो ये सारे काम अभी हमने इनको प्रायोरिटी पर रखा हुआ है कि उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ताकि लोग इससे अपना फ़ायदा उठा सकें। ग्राउंड माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तैयार हो गया, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो यहाँ पे जो है वो मशीन नहीं थी ग्रास कटिंग की, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज हमने MPA साहब के हुक्म पे ग्रास कटिंग मशीन इनके हवाले कर दी है। म्युनिसिपल कमिश्नर सनाउल्लाह ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर को 1.5 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। शालीकोट में जो ग्राउंड है उसके लिए भी MPA साहब ने इंस्ट्रक्शन दी और ऑलरेडी उसके लिए बजट भी अप्रूव्ड है, तो उस पर भी इंशाल्लाह हमने 10 दिन के बाद विजिट करना है और अपनी प्रोग्रेस दिखानी है कि हमने वहाँ पे काम कहाँ तक पहुँचा दिया। मुख्तलिफ स्कीम्स विज़िट किए गए जिसमें लाइब्रेरी भी है और पार्क्स भी हैं। इंशाल्लाह इन सारे कामों को अपने जो स्पेसिफिक टाइम दिया है MPA साहब ने उसमें कंप्लीट करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। आज की विजिट का मकसद सिर्फ ये था कि उन कामों को हम स्पीड अप करें और मुकम्मल करें जल्दी और उनको पब्लिक की हैंड ओवर कर लें ताकि पब्लिक उनसे फैसिलिटेट हो जाए। जो ग्राउंड्स हैं, जो लाइब्रेरी हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जो काम DMC की चल रहे हैं, उन कामों को स्पीड अप करना आज की विजिट का मकसद है और इंशाल्लाह ताला वो काम स्पीड अप हो जाएंगे और जो काम अधूरे रह गए, जिन कामों पे हमने आज विजिट किया, वो 2 से 3 मंथ में हम उनको कंप्लीट करके पब्लिक को हैंड ओवर कर लेंगे ताकि पब्लिक फैसिलिटेट हो उनसे। इलाका मकीनों ने कम्युनिटी सेंटर के क़याम पर एडमिनिस्ट्रेटर रियाज अहमद खत्री, म्युनिसिपल कमिश्नर सनाउल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी काविशों से जिला मलीर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हो रहे हैं। बात करेंगे कराची के ज़िला गरबी के इलाके औरंगी टाउन के हवाले से। आपको बताएं कि कराची के ज़िला गरबी में जा बजा मसाइल ने यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद कर्ब और परेशानी में मुब्तला कर रखा है, जबकि औरंगी टाउन की अहम शाहराहों समेत अंदरूनी सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गई। मकीन मिनटों का सफ़र अब घंटों में तय करने लगे हैं। कराची के मसाइल ही मसाइल, कहीं सड़कें, कहीं सेवरेज, कहीं कचरे के अंबार शहर का मुकद्दर बन गए। औरंगी टाउन भी इन्हीं बेबस इलाकों में से एक है जहां मसाइल के अंबार ने यहां के मकीनों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम किसी शहर में रह रहे हैं या गांव में। औरंगी टाउन की अहम शाहराएं समेत अंदरूनी और बैरूनी सड़कें मुताल्लिका महकमों की गफलत के बायस खंडर में तब्दील हो गई। बड़े बड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे हैं। यहाँ के मकीन सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से नाला दिखाई देते हैं। मकीनों का कहना है कि औरंगी टाउन को सियासी मफादात की खातिर तबाह किया जा रहा है। सड़क तो बननी चाहिए, आने आने में परेशानी है। आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क खराब है, यहाँ पे बाइकें भी खराब होती हैं। फिर आप देखें कीचड़ कितनी है यहाँ पे, गंदगी भी देख लें। मेरी पैदाइश 12 नंबर की है, मैं कुछ अर्सा बाहर रहा हूँ। जब आता हूँ तो मैं खुद को मुझे शर्म आती है। ये भी यहाँ भी लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ भी रहते हैं। औरंगी टाउन में ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदाइश यहाँ की है। कितने लोग बसे हैं, ये जो रोड का जो हाल है ये तो बार बार मैं वीडियो बना के मैंने एक वीडियो दिखाया मलेशिया में, मेरे दोस्त यार हंस रहे हैं, बोला आपका इलाका ऐसा है, हालांकि इतने बिल्डिंग बने हुए हैं, कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं।
इनको चाहिए कि काम करे, हमारे MNA को चाहिए कि काम करे, रोड बने। एक ज़माना हो गया हमें तकरीबन 2-2.5 सालों से तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कारोबार भी बिल्कुल ना होने के करीब है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आमदोरफ्त में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है और इसके अलावा यहाँ से बीमारों को ले आना, हॉस्पिटल में ले आना बहुत बड़ा मसला हो गया हम लोगों के लिए ना। पूरे यहाँ से आप सदर से कहीं से भी आ जाए ना, इतनी परेशानी नहीं थी, जहाँ से चढ़ाई से लेकर 13 नंबर तक जाने में परेशानी होती है। उनका मजीद कहना था कि सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से अपील है कि यहाँ की सड़कों की मरम्मत के कामों को बर वक्त मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। और अभी आपको बताएं कि कराची वाले तफलीही सहूलियात से महरूम हो गए। आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन 13 नंबर में पार्क हेरोइंचियों की आमाजगाह में तब्दील हो गया, जबकि पार्क में बच्चों और खवातीन के बजाय हेरोइंची नशा करते नजर आने लगे। शहर कायद में आवाम को तफरीही सहूलियात से महरूम कर दिया गया। औरंगी टाउन नंबर 13 में कायम पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। पार्क की खस्ता हाल इंतजामिया की गफलत की कहानी सुना रही है। पार्क में खवातीन और बच्चों की बजाय हेरोइंची नशा करते नजर आते हैं। पार्क में जा बजा कचरे के अंबार और बदबू इस पार्क की पहचान बन गए हैं। इलाका मकीनों ने कई बार इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई, मगर नतीजा सिफर का सिफर ही रहा। 4-5 साल से ये पार्क बन रही नहीं है। हर कोई रोड का ये विजिट भी करने आ रहे हैं। रोड की हालत देख सकते हैं आप, यहाँ से कोई रुकता नहीं है। पार्क में बहुत अच्छा था माहौल 4-5 साल पहले। टाइम में बहुत अच्छा हुआ करता था, फैमिली भी आती थी इस पार्क में। अब ये बहुत 4-5 साल से इस पार्क का बहुत बुरा हाल है। इधर बनना भी चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इस पार्क को बनाए फैमिली के लिए, ताकि फैमिली आ सके इस पार्क के अंदर अपने बच्चों के साथ भी। इलाका मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी से मुतालबा किया कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और पार्क से हेरोइंचियों का खात्मा करके पार्क में सहूलियात फराहम की जाए, ताकि हमें तफरीही सहूलियात मैसर आ सके। और अभी आपको बताएं कि कराची में अब तफरीही पार्क भी आपको बताएं कि सीवरेज के पानी से ना बच सके। कराची में अब खेल के मैदान भी सीवरेज के पानी में डूब गए, जबकि गुलशन इकबाल 13D2 का ग्राउंड स्या तालाब में तब्दील हो गया। खेल की सरगर्मियां मुअत्तल, खिलाड़ी सड़कों पर खेलने पर मजबूर हैं। कराची के जिला शर्की में इंतजामिया की बद इंतजामी उमूर खुलकर सामने आ गए। गुलशन इकबाल के 13D2 में वसीम बाग नामी एक ऐसा ग्राउंड भी मौजूद है जो कि बरसाती और सीवरेज पानी से मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है। ग्राउंड में जहां नजर दौड़ाई जाए आलूदा काला पानी ही दिखाई देता है। इलाका मकीन कहते हैं कि ये है हमारी इंतजामिया के कारनामे। 12 दरख्वास्तें दे चुके हैं, जिस पर अब तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये सीवरेज बरसात दोनों का पानी है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 इतना जमा पानी है, शिकायतें करी, सारी चीज़ें करी, कोई पानी नहीं आया। यहाँ सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुई। वही बारिशों की वजह से यहाँ गंदगी, यहाँ होटल है, इस होटल में लोग बैठते नहीं है इस गंदगी की वजह से कि यहाँ मच्छर वगैरह। ये हायर टैक्स पेड इलाका है, जो टैक्स पे करते हैं यहाँ पर सब लोग, तमाम बिल अदा करते हैं। उसके अलावा जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं सब अदा करते हैं, उसके बावजूद इस हालत में रहते हैं। ये जब से बारिश हुई है उस वक्त से पानी खड़ा है। फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज की लाइनों का है। सीवरेज की लाइनें अंडर कैपेसिटी हैं, छोटी हैं, बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, ये लोग बनाए जा रहे हैं, और जो है ना सीवरेज की लाइनें जो है ना वही पड़ी हुई हैं। उसी के अंदर बिल्डिंग्स का भी पानी जा रहा है, उसी के अंदर घरों का भी पानी जा रहा है, वो ओवरफ्लो हो जाती हैं। यहाँ इतना मच्छर होते हैं और बदबू होती है। मच्छरों की वजह से यहाँ बैठना ना हाल है और बदबू बहुत है। इधर खेलना कूदना होता है, मैच खेलते हैं हम शाम में, इसकी वजह से पानी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अरसे से सीवरेज पानी के खड़े होने से न सिर्फ इलाके में मच्छरों की बहुतात है, बल्कि मकीन भी तरह तरह के वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं, जिस पर मुताल्लिका महकमों का चुप साध लेना किसी तशवीश से कम नहीं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल से ही। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में नई सीवरेज की लाइंस भी इलाके से सीवरेज का गंभीर मसला ताहाल हल न कर सकी। लाइनों के चौक होने से सीवरेज का आलूदा पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जबकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत जिला इंतजामिया एक दूसरे पर मलबा डालने लगे।
बर्बाद हुए इलाकों में अवामी कसूर क्या? इदारा नकासी और फराहमी आप समेत मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली से गुलशन इकबाल का ब्लॉक 7 भी काले पानी की नजर हो गया। गुलशन इकबाल के ब्लॉक 7 में नई सीवरेज लाइन की तब्दीली भी इलाके से सीवरेज का गंभीर मसला हल न कर सकी। लाइनों के चौक होने से सीवरेज का आलूदा पानी सड़क पर मुसलसल बह रहा है, जिस पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत जिला इंतजामिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। सिंध हुकूमत जो है ना बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, किसी किस्म का कोई इलेक्शन भी हो रहा है, वोट भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही। पानी बारिश आती है, गटर उबल रहे हैं, वो सामने गटर है, वहाँ से पानी आता है, नाले का यहाँ से पानी आता है, वहाँ पे जमा होता है और सारी खवातीन, लेडीज़, माँ बहनें जो भी हैं वो सीवरेज से पानी से जाती हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा। जिस इलाके में भी चले हैं पानी खड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, बाइक वाले, पैदल चलने वाले, हर लिहाज से आवाम को तकलीफात का सामना है। हर तरफ यही सूरत हाल है, हमारे घर के रोड पर भी वहाँ भी गटर, हर वक्त पानी बह रहा है, गंदी गलियों का बुरा हाल हुआ हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी ये गुलशन में हम इस वक्त मौजूद हैं, गुलशन के हमारा ये FB एरिया का इलाका ले आयशा मंदिर, वहाँ पे भी हमारे शॉप्स वगैरह हैं, तो वहाँ का भी यही रोड का हाल है। जहाँ बारिश थोड़ी होती है वहाँ गड्ढा बह जाता है। मकीनों की कई बार शिकायत के बावजूद भी मुताल्लिका महकमों की जानिब से इलाके से बर वक्त सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त न किया जा सका, जो कि अवामी बुनियादी हुकूक और सहूलियात सलब करने के मुतरादिफ है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।